Hello, my dear students. So, today we start with SOP 1. Okay, HSC board practical first. Creation of website using HTML5. Okay, in this example, we have to create two. Okay, in HTML5 and CSS using any four CSS property. Okay, now in first page, the index page must contain a heading which is highest among other texts on pages and must be at center of the page. There must be a paragraph which introduce general information about the theme chosen, must have at least 3 physical style tag and one image with alternate text. Okay, then in second page it must contain feedback or enrollment form. Okay, and related with theme, uh, choose features of HTML5. Okay, and the form must contain the text element and email address of the company or person and include the submit button. So my dear students, in this example we are taking theme as a college. Okay, college profile. Now we start with this programming. So my dear students, for making you understand properly, okay, I use PDF format of this code. Okay, so you can easily understand. Okay, so now according to the question, okay, here we are using style tag. Okay, in heading section. Okay, now see here we are using h1 paragraph, h2 and h3. Okay, my dear student, now we are using body bg color as a hexa color. Okay, and we call h1 heading 1 and we put the college name. Then according to the question we insert image. Okay, college logo .png, we set its height and width. Okay, and alternate text we put as a college logo. Then again we are using full name of the college, Caroline Samajam Model College. Okay, and we put the address of that college and we close h3 over here. Okay, according to that, uh, we wanted to make a specific paragraph which shows detailed information about our college. So our college mission statement we are using here under the h1 title. Okay, then we are putting that statement. Then we are using h3 about our college objectives. Okay, and in h3 here we are using ul tag or order list and we put the list item. Okay, and after that, in after feeding all the detailed information or about the object, we are taking our college goals. Okay, in this section again we are using h3. Okay, h3 style tag. Okay, which is defined previously in heading section. Okay, then we are here we are using ol tag order list. Then we close order list after defining the content of goals. Okay, then h3. Now here we are giving hyperreference linking to the second.html page. Okay, and we put the text, click here for the registration. Okay, we close anchor tag, h3 we close, body tag close, html close. So this is your first example. Okay, and output देखेंगे हम कैसा है इसका. Okay, it's your output, my dear student. Okay, this is your output. While you are doing the practical you will get properly
Okay, now about to code. Okay, I just I adjust this code for if you wanted to take a screenshot or writing journals and all. Okay, that's why I'm taking a few minutes pause. Okay, after that this page. Okay, my dear student, now we start with the second.html page. In second.html page, first you need to keep in mind as a hyperreference the name which you are putting over here, ahref second.html. Click here, same name you should have to put over here. Okay, by mistake I am putting capital letter html in capital. Okay, and here I save my second.html page in a small letter. So you have to correct my mistake while you're doing the practical. Okay, now here second.html, I purposely made this because you can't understand if you are not making such kind of a mistake. For that purpose मैंने पर्पसली यहाँ पे कैपिटल में डाला HTML और यहाँ पे स्मॉल पे सेव किया कि जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि जो नाम आप हाइपर रेफरेंस से डालोगे वही नाम आपको वो फाइल पे सेव करना है, या फिर जो नाम से आपका सेकंड फाइल सेव होगा वही नाम से आप यहाँ पे हाइपर रेफरेंस प्रेफर करोगे. ओके, नाउ second.html. In second.html, okay, according to the question, okay, we take a body bg color as a hexa color. Then we are again take image source, we put height and width. ओके, अलाइनमेंट टॉप में रखा उसका. और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इनलाइन सी एस एस. ओके, इनलाइन सी एस एस यूज किया तो यहाँ पे देखो पहला H1 प्रोवाइड किया, सेंटर टैग नॉर्मल टैग यूज किया ये है, बट paragraph style is equal to color and color is equal to blue. So this is your inline css. In between we are making change, and then we put our college name. Okay, and after that detail address about the college, the first part of your previous page. Okay, same get repeated till the address over here. Now the main part is registration form. ओके, अबाउट द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉर्म टैग डिफाइन किया है, फॉर्म नेम इज इक्वल टू F1. और यहाँ पे हमने लिया है टेबल टैग, फॉर्म टैग में टेबल टैग. सो माय डियर स्टूडेंट, जहाँ जहाँ मैं अंडर में हूँ या कुछ बोल्ड टैग कर रही हूँ तो समझ जानने का ये कुछ तो स्पेसिफाई करना है. ओके, अभी यहाँ पे देखो टेबल को अलाइन किया है और टेबल रखा है सेंटर में, सेल पैडिंग 10 रखा है. नाउ यहाँ पे फर्स्ट नेम और ये जो है ये है कमेंट टैग. तो आपको समझ में आने के लिए जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे, कोडिंग करोगे, तो आपको इजीली समझेगा. इसके लिए ये अलग अलग से मैंने सेक्शंस में उसको इंसर्ट किया है अंडर द कमेंट टैग. तो कमेंट टैग किसके लिए रहता है, तो यूज़र के लिए रहता है कि उसको समझे कि ये कोड को किसके साथ बिलोंगिंग है. ओके, मिस्टेक्स ना हो इसके लिए स्पेशली. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम जैसे ही टेबल टैग ऊपर डिफाइन किया हमने फर्स्ट नेम, और फिर फर्स्ट रो आया, फिर फर्स्ट रो का पूरा डिटेल डाल दिया, फिर लास्ट नेम. ओके, फिर डेट ऑफ बर्थ. यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में इनपुट टाइप डेट अपना जो HTML5 का डेट एट्रीब्यूट है वो यूज़ किया है. देन ईमेल आईडी सेम, देन मोबाइल नंबर HTML5 इनपुट टाइप यूज़ किया है यहाँ पे. देन जेंडर के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया रेडियो बटन. अभी यहाँ पे जेंडर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये एक बात ध्यान में रखो, आपको एक सिंगल चॉइस है. ओके, इसके लिए आप उसका नेम चेंज नहीं करोगे. ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम, जेंडर, वैल्यू, वॉट एवर इट बी. ओके,
तो नेम अगर चेंज नहीं करते तभी आपको एक्सेप्शनल है कि आइदर फर्स्ट सिलेक्ट करना या फिर सेकंड। अगर आप नेम चेंज करते हो तो आपका रेडियो बटन एक्टिवेट होगा ही नहीं। ओके, देन अबाउट टू एड्रेस, देन सिटी, पिन कोड, स्टेट, कंट्री, ये बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है। देन यहाँ ओके, ये जो सब कुछ जा रहा है वो टेबल का रो और टेबल के डेटा पुटअप करने के बाद टेबल रो क्लोज हो रहा है। सबको मैंने जो जो टेबल रो ओपन हो रही है उसको सबको डार्क किया है, बोल्ड किया है। ओके, और उसके बाद मैंने वो उसको क्लोज किया है। ओके, ये समझो आप। उसके बाद हॉबीज़, हॉबीज़ में हमने डिटेल इंफॉर्मेशन फीड किए हैं। ओके, देन आता है मेन पार्ट क्वालिफिकेशन, जो मुझे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्वालिफिकेशन में हमने क्या किया, क्वालिफिकेशन टीआर डाल के टेबल डेटा क्वालिफिकेशन डाल के ब्रेक लिया। ब्रेक टैग डालने के बाद फिर नेक्स्ट टेबल डेटा आता है क्वालिफिकेशन के सामने। सो यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल यूज़ किया है। आई बात समझ में, टेबल टैग यूज़ किया है। हियर वी कैन इंसर्ट टेबल इन टीडी इन द टेबल डेटा। अगेन नेस्टेड टेबल तैयार किया है हमने। आई बात समझ में, इसके लिए ऊपर वाले टेबल को मैंने अंडरलाइन किया और जो नेस्टेड यूज़ करे उसको बोल्ड में रखा। ओके, सो ये है उसका कोडिंग, अलाइनमेंट कैसे देना है। ओके, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। फिर वो टेबल रो यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर सेकेंड टेबल रो ओपन हो गया, फिर वो टेबल रो यहाँ पे क्लोज हो गया, और यहाँ पे डार्कली जो बंद क्लोज किया है हमने, देखो ये है आपका नेस्टेड टेबल क्लोज किया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने लिया सबमिट एंड रिसेट बटन। ओके, वो भी हमने टेबल रो में डाल दिया। ओके, और सबमिट और रिसेट बटन की वैल्यूएशन यहाँ पे डाल दी। यहाँ पे देखो, हमको दोनों भी बटन एक्टिवेट करने हैं। इसके लिए हमने क्या किया, टाइप सबमिट बटन नेम B1 दिया है और फिर से रिसेट के लिए B2 दिया है। यहाँ पे चेंज कर सकते हो, दोनों भी एक्टिवेट करना है, बट ऑप्शन बटन में आपको क्या करना है, रेडियो बटन में एक ही सिंगल चॉइस है, तो आपका नेम जो रहेगा बटन का वो सेम आना चाहिए। और फिर यहाँ पे आपका मेन टेबल क्लोज हो गया। आई बात समझ में। और फिर अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे H3 लेके AHREF index.html लिया। ओके, क्लिक हियर टू मेन पेज। सो आप क्या करोगे, ये प्रोग्राम होने के बाद यहाँ पे जब हम जाएंगे, ओके, यहाँ वो एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा है, बट आपका सेकेंड पेज से आप क्या करोगे, फर्स्ट पेज पे आप जा सकते हो, बिकॉज हमने यहाँ पे हाइपर रेफरेंस दिया है index.html। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। सो आपको क्या करना है ये सब कोडिंग करने के लिए, तो आपका index.html, सेकेंड पेज.html, ये जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स है उसका एक फ़ोल्डर बनाना है। ओके, और वो फोल्डर में आप वो एग्जिस्टिंग फाइल सेव करोगे साइमल्टेनियसली। यहाँ देखो, लोगो logo.png जो कॉलेज का लोगो है। ओके, फिर सबमिट button.png। ओके, ऐसे जो भी आपको रिक्वायर्ड थिंग्स है, जो फोल्डर में आप सेव करोगे वो आपका मेन फोल्डर रहेगा। ओके, जिसमें आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल रहेगा। ओके, तो जब भी आप ये सब चीज़ें इकट्ठा जमा करके रखोगे तभी वो सपोर्ट करेगी और एग्जीक्यूट करेगी। तो ये है आपका कॉलेज का लोगो। ओके, ये कॉलेज का लोगो आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है या फिर डाउनलोड करना है। क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट पेज है उसका जो वीडियो है, पॉज करती हूँ। इफ़ यू विश टू टेक अ स्क्रीनशॉट you can easily take a screenshot. Okay, yes my dear student, I hope you understand better in this form, otherwise मुझे फिर वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा। बट ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि आपको आराम से कोड लिखने को हो। ओके, के बाद हम आगे थोड़ा सा जाते हैं ऊपर, यहाँ पे हाँ
better. Okay, now next. Okay, for the hobbies and remaining things. Yes, my dear students, I am trying to clear more things in different app. Let's see आपको कितना समझता है. Okay, now this one. Okay, and this is your output. Okay, my dear students, I hope you understand perfectly. Yes.